Hello everyone, welcome back to the channel. In our previous video, we studied in details about the pollen-pistil interaction, and in this video, we are going to study the structure and events occurring in the post-fertilization. So let us begin with the chapter. Our first topic is endosperm. So what are endosperms? Endosperm is a nutritive tissue formed from vegetative fertilization. Endosperm is meant for nourishing the embryo. It is generally triploid. So basically यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एंडोस्पर्म्स एम्ब्रायो से पहले डेवलप होता है बिकॉज वो एम्ब्रायो की नरिशमेंट में हेल्प करता है, राइट? सो एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, दैट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट, व्हाई? तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि सिंस दे आर made up of nutritive tissues, they are used for the nourishment of the embryo. Okay, I hope आप clear हो गए. Next point says that the endosperm may show the effect of genes from the male gamete. The phenomena is called xenia. This occurs because the endosperm is fully developed in a mature ovule. Since जो endosperm है वो mainly आपको male gametes का ही feature show करेगा, तो उसे हम xenia कहते हैं. ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वो एक मैच्योर ओव्यूल में डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स का जो रोल है या फीमेल जीन्स का जो रोल है वो वहाँ पे प्ले नहीं हो पाएगा. लास्ट पॉइंट सेज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट effect of pollen on structure inside embryo sac is limited to the endosperm and it is not seen in the embryo. This effect was described by Fouquet in the year 1881 and it is seen in maize alone. That means it is only seen in the maize plant. तो हमारा next topic है nuclear endosperm. So primary endospermic nucleus forms a large number of free nuclei by repeated mitosis. तो आप देखो इसका एक सिंपल सा परफेक्ट एग्जाम्पल है कोकोनट. ठीक है, तो कोकोनट में बेसिकली जो कोकोनट वाटर होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियाई रहता है एंड दैट इज डेवलप्ड बाय repeated mitotic division. So a central vacuole is then formed which pushes the large multinucleated cytoplasm to the periphery. So ये जो large multinucleated cytoplasm की यहाँ पर बात हो रही है वो actually आपका कोकोनट कर्नल है, यानी कि जो white edible part है कोकोनट का ये वो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है. तो जब फ्री न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सेंट्रल स्पेस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो इस सेंट्रल स्पेस क्रिएट होने की वजह से वो क्या करते हैं, जो साइटोप्लाज्म है उसे पेरिफेरी यानी कि साइड वॉल्स में पुश करते जाते हैं और पुश करने के कारण ये एक वाइट थिक कर्नल यानी कि सॉलिड एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है. Walls are formed later and the central vacuole disappears. तो जब आपके walls form होते हैं यानी कि एंडोकार्प फॉर्म होता है तो जो central vacuole है वो disappear हो जाता है. Example maize, wheat and rice में आप देख सकते हो. In coconut there exists a multicellular solid endosperm in the outer region and a free nuclear liquidy endosperm in the center. तो सिंपल सी बात है, जो कोकोनट का edible water है उसे हम लोग लिक्विडी एंडोस्पर्म बोलेंगे, राइट? और जो व्हाइट एडिबल पार्ट है द कर्नल ऑफ द कोकोनट उसे हम सॉलिड एंडोस्पर्म कहेंगे. सो ओवरऑल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, और भी टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं बट आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बताया गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म. In plants with albuminous seeds, the nutrients in the endosperm help in early seedling growth. Now see, albuminous means what? Albuminous का मतलब ये होता है जिसमें endosperm resist करता है throughout the plant growth. ठीक है? So it says that in plants with albuminous seeds, the nutrients in the endosperm help in early seedling growth. So basically जो आपके endosperm resist कर रहे हैं वो seed growth में भी help करते हैं क्योंकि endosperm is made up of nutritive tissue. Right? Next point says that endosperm provides nutrition to developing embryo. ये हम लोग ने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था. लास्ट पॉइंट फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म्स में है कि the liquid endosperm of coconut contains the auxins, cytokinins, abscisic acid and gibberellin and induces cytokinesis when added to basic nutrient medium. Now see, ये जो सारे टर्म्स मैंने अभी पढ़ा वो सारे के सारे प्लांट हार्मोन से आपने क्लास 9th और 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चल रही है कि जो कोकोनट
वाटर रहता है उसके अंदर सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप कोकोनट वाटर को किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड करते हो, it will induce cytokinesis in itself. Okay, so when it is added to basic nutrient medium, it induces cytokinesis. Coconut milk can also be used to induce the differentiation of embryo and plantlets from various plant tissues. तो ये भी एक coconut milk का use है. Last point ये कह रहा है कि zeatin is a very potent cytokinin. So zeatin is a very important plant hormone. It is extracted from the young endosperm of maize. Okay, our next topic is embryogeny. That means the formation of embryo. Let me read out the points for you. So embryogeny simply means that it is the development of mature embryo from zygote or oospores. Okay, early development of embryo produces a proembryo which has an axial symmetry. तो आप अगर NCERT book में देखोगे, इस diagram में you will observe that the zygote, when it is developing into a proembryo, it is having an axial symmetry. That means the left and the right side are almost parallel and equal to each other. Right? Now, the embryo passes through the globular stage. तो यहाँ पर देखो, after the proembryo, ये जो आपका stage है, ये proembryo का stage है, and इसके बाद आपका globular embryo का stage आ रहा है. Right? After the globular embryo stage, the endosperm develops into a heart-shaped embryo. So development of embryo occurs on inner side because of the presence of suspensor. Thus, the embryo development is endoscopic. So the term endoscopic means that the development is starting from inside, yani ki from within the embryo. Okay. Now our next topic is the dicot embryogeny. That means the formation of the dicot plants. तो देखो, dicot term का मतलब क्या होता है? तो dicot word is made up of two different words. Di means two and cot refers to the cotyledons. तो जो भी plants जिसमें दो cotyledons रहते हैं उसे हम dicot plants कहते हैं. ठीक है? So let us discuss about it. Zygote divides into two unequal cells, larger suspensor cells towards micropyle and a smaller embryo cell towards the antipodal region. The suspensor cell undergoes transverse division 6 to 10 celled suspensor. Okay, the first cell of suspensor is called the hostrium and the last cell is called the hypophysis and it forms the radicle. To make this more clear, let us look at this diagram. You can see that the dicot will first have the suspensor cell at the micropyle end and towards the antipodal end it will be having the embryo cell. Okay, now after this, if you look at figure C, C and D, you will understand that the micropylar end divides into the haustaural cell and the dermatogen, which is the last cell towards the embryo, forms your hypophysis. तो आप कंफ्यूज मत होना. देखो, ये जो ऊपर वाला सेल रहेगा वो आपका सस्पेंसर सेल है और जो बॉटम वाला सेल रहेगा वो एम्ब्रियो सेल है. तो क्या होता है कि जो सस्पेंसर सेल है वो हॉस्टोरियल एंड में डिवाइड होता है. ओके, और जो एम्ब्रियो सेल है आपका जो पिंक मार्क्ड है यहाँ पर, उसके जो लास्ट वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइपोफाइसिस. ठीक है. Now, our last point says that embryo cell divides twice, vertically and once transversely, to produce a two-tiered 8-celled called embryo. The epibasal terminal tier forms the two cotyledons and a plumule. The hypobasal near the suspensor tier produce only hypocotyles. तो आप देखोगे इस डायग्राम में यहाँ पर जो एपीबेसल एंड है यानी कि जो टर्मिनल एंड है वो आपके कॉटिलिडन्स को प्रोड्यूस कर रहा है. राइट, टर्मिनल एंड है तो ये जो आपका पार्ट हो रहा है दैट इज योर टर्मिनल एंड इट इज प्रोड्यूसिंग टू कॉटिलिडन्स. वेयर एज टॉकिंग अबाउट द अपोजिट पार्ट ऑफ द टर्मिनल दैट इज नियर द सस्पेंसर, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो एम्ब्रियो था ना वो इस डायग्राम में फोल्ड अप हो गया है. देखो, सस्पेंसर के पार्ट से आपका रेडिकल आ रहा है यानी कि रूट आ रहा है और जो टर्मिनल एंड था, जो एम्ब्रियो की साइड वाला जो एंड था, वहां पर आपको कॉटिलिडन और प्लम्यूल मिलेगा. ठीक है, आप समझ पा रहे हो. देखो, ये आपका सस्पेंसर सेल था इन द इनिशियल स्टेज और ये फाइनल स्टेज में आपका सस्पेंसर सेल है. सस्पेंसर सेल से हमें रूट कैप, रेडिकल मिलेंगे और जो एम्ब्रियो सेल था उससे हमें कॉटिलिडन और प्लम्यूल मिलेंगे. ठीक है.
Talking more about the dicot embryo, it says that it is initially globular, it becomes heart-shaped later and finally takes the typical shape. A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. The part of the axis above the level of cotyledons is called the epicotyle. It ends with the stem tip as the plumule. The plumule gives rise to the future root. तो देखो आप इस डायग्राम में जब ये ग्लोबुलर शेप्ड का होता है, ये आपका ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो हुआ, डाइकॉट एम्ब्रायो, उसके बाद ये एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो में डेवलप होता है, ठीक है। और हार्ट शेप एम्ब्रायो आप देखोगे ये एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बना रहा है। इसे डेवलप होने के बाद ये अपना एक टिपिकल शेप को एग्जिबिट कर लेता है, ठीक है। और जब हम इसके और डिटेल्स में देखेंगे तो आप देखो, अभी मैंने एक पॉइंट पढ़ा था कि द पार्ट ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द एपिकोटाइल इज योर कॉटिलेडन्स एंड प्लूम्यूल, राइट। देखो ये एपिकोटाइल है और इसके अबव जो भी पार्ट आ रहा है आपका, वहां पर आपको कॉटिलेडन्स और प्लूम्यूल मिलेंगे। और प्लूम्यूल क्या होता है आपका? फ्यूचर शूट होता है। वेराज द पार्ट बिलो द एपिकोटाइल फॉर्म्स द हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो एपिकोटाइल कंसिस्ट ऑफ द प्लूम्यूल एंड कॉटिलेडन्स, वेराज द हाइपोकोटाइल कंसिस्ट मेनली ऑफ योर रेडिकल एंड रूट कैप, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। देखो जो एपिकोटाइल है वो एक एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर जितने पार्ट्स आ रहे हैं दैट इज योर कॉटिलेडन एंड प्लूम्यूल, एंड इसके जस्ट बिलो क्या आता है? हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल क्या कंसिस्ट करता है? रेडिकल और द रूट कैप, जो कि आपका फ्यूचर रूट है। द पार्ट below the level of the cotyledons are known as hypocotyles, right? It terminates to the root tip called radicle. The radicle gives rise to the future root. The root tip is covered with the root cap. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो radicle है वो एक root cap से covered रहता है और ये help करता है roots को further grow होने में soil के अंदर। Okay? So I hope आप clear हो गए होंगे dicot embryo से। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगी कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। Okay. Now, before starting the topic monocot embryo, let me show you another diagram. So, in this diagram, you will see that there are two cotyledon, okay? And inside this, you can see here is the radicle, जो कि future root में develop हो जाएगा, और जो epicotyle है, उसमें plumule भी होता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लूम्यूल इज योर फ्यूचर शूट, तो आप यहाँ पर देखोगे ये पार्ट आपका फ्यूचर शूट में डेवलप हो जा रहा है। सो शूट इज द पार्ट अबव द ग्राउंड लेवल एंड रूट इज द पार्ट बिलो द ग्राउंड लेवल। आई होप आपको ये बात पहले से पता होगी, ठीक है। सो ये ओवरऑल जर्मिनेशन है एक डाइकॉट सीड का, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोनोकॉट एम्ब्रायोजेनी. The zygote undergoes transfer division to produce a vascular suspensor cell facing the micropylar end and embryo cell facing the chaliceal end. तो ये बिल्कुल सेम चीज है आपके डाइकॉट एम्ब्रायो जैसा, ठीक है। The embryo cell undergoes another transfer division to form a terminal and middle cell. So यहाँ से आपकी डिफरेंस शुरू होती है डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रायो में। सो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर पहला सेल आपका सस्पेंसर सेल है। सिंस यहाँ पर और ट्रांसफर डिविजन्स होते हैं तो उस वजह से यहाँ पर एक मिडिल सेल और एक टर्मिनल सेल प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। The terminal cell undergoes vertical as well as transfer division to form a globular embryo. It also forms a large plumule and a cotyledon. As the cotyledon grows towards, it pushes the plumule to one side. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो टर्मिनल सेल थे उसमें और डिविजन्स होते हैं, और वो जो टर्मिनल सेल यानी कि जो लास्ट वाला सेल है इसमें और ज्यादा, देखो आप यहाँ से देखो ये और ज्यादा डिवाइड करता जा रहा है और एक बड़ा सा लार्ज कॉटिलेडन प्रोड्यूस करता है। और एक और खास बात कि यहाँ पे जो कॉटिलेडन और जो प्लूम्यूल रहता है दे आर वेरी लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू डाइकॉट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सस्पेंसर सेल से भी काफी बड़ा है साइज में। One more interesting point it's written over here is that as the cotyledon grows, it pushes the plumule to one side. That means जब cotyledon की growth होते जाती है तो वो क्या करता है, आपका plumule को एक साइड में पुश कर देता है। यानी कि फिगर जी आप अगर नोटिस करो तो ये cotyledon हो जा रहा है आपका, ये जो this part is your cotyledon, okay, and this smaller part is your plumule because it is pushing
इट्स टुवर्ड्स द साइड। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे देखो प्लेम्यूल और कॉटिलेडन्स दोनों मिक्स्ड अप थे, बट जैसे जैसे कॉटिलेडन ग्रो हुआ तो प्लेम्यूल को इसने साइड में पुश कर दिया, राइट। One more interesting thing is in some grasses the remnant of the second cotyledon is also seen. यानी कि जो plants मोनोकॉट है कभी कभी उसमें जो सेकंड कॉटिलेडन है उसका भी रिमेनेंस यानी कि उसका भी रिमेनिंग पार्ट कभी कभी हमें दिख जाता है, और उस रिमेनिंग पार्ट को हम एपीब्लास्ट कहते हैं। मैं एक बार फिर से समझा दूं, देखो मोनोकॉट्स में एक सिंगल कॉटिलेडन होता है, बट कभी कभी कुछ प्लांट स्पीशीज में हमें जो दूसरा कॉटिलेडन जो डेवलप होकर डाइकॉट बनने वाला था वो डेवलप नहीं होता है, और वो एक छोटा सा एपीब्लास्ट के फॉर्म में हमें दिख जाता है। ठीक है, जो आपका प्लांट है वो मोनोकॉट ही रहेगा, बट सिंस जो दूसरा वाला कॉटिलेडन आपका डेवलप नहीं हो पाया तो उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एपीब्लास्ट। ठीक है, the single cotyledon of monocot is known as the scutellum. It is shaped like a shield and appears as terminal. So यहाँ पर देखोगे फाइनली जब आपका कॉटिलेडन डेवलप हो जाता है तो उसे हम स्क्यूटलम कहते हैं। ये देखो, ये जो आपका जो रीजन है दिस इज योर स्क्यूटलम रीजन, और इसके अंदर आपको बाकी सारे पार्ट्स मिलेंगे। तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। ठीक है, next point says that the middle cell produces the hypocotyles and radicle. It could result in the increasing of the cells of the suspensor. In the beginning we saw that there was a middle cell. ये क्या होता है, ये आपके हाइपोकोटाइल और रेडिकल को डेवलप कर देता है। ठीक है, उतनी देर से हमने इसका कोई रोल नहीं देखा था, यहाँ पे जो सस्पेंसर सेल्स थे उसका रोल हमने नहीं देखा, बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्यूटलम क्या होता है कि ये जो मिडिल सेल रहते हैं वो आपको रेडिकल और हाइपोकोटाइल डेवलप करने में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्टिव शीट्स कवर बोथ द रेडिकल एंड द प्लेम्यूल। दे आर कॉल्ड कोलियोहाइजी एंड कोलियोप्टाइल्स। तो जो प्रोटेक्टिव शीट यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, स्क्यूटलम को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कोलियोहाइजी एंड कोलियोप्टाइल। सो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि स्क्यूटलम का जो पार्ट आपके रूट कैप को प्रोटेक्ट करेगा उसे हम कोलियोहाइजी कहेंगे, यानी कि ये वाला एंड, और स्क्यूटलम का जो भी पार्ट आपके प्लेम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा यानी कि शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करेगा उस रीजन को हम कोलियोप्टाइल कहेंगे। ठीक है, तो जो स्क्यूटलम है वो एक्चुअली में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पार्ट प्लेम्यूल को प्रोटेक्ट करता है उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, और जो भी स्क्यूटलम का पार्ट रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है उसे हम लोग कोलियोहाइजे कहते हैं। सो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं आपको जर्मिनेशन दिखाऊं मोनोकॉटिलेडन के, तो आप यहाँ पर देखोगे एंडोस्पर्म, कॉटिलेडन, कोलियोप्टाइल भी दिख रहा है हमें, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, all the parts are labeled in this diagram. Now what happens, यहाँ पे जो रेडिकल है वो रूट में ग्रो करेगा, और जो हाइपोकोटाइल है वहां से आपका स्टेम क्रिएट होता है, और जब आपके बेसल पार्ट क्रिएट हो जाते हैं एपिकोटाइल है और जो कोलियोप्टाइल है वो आपके लीव्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। सो मैं चाहूंगी कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स एक साथ दिख रहे हैं। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इससे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।